स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रा में स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 में क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू? प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 8 घंटे वो लेते हैं to travel how much kilometer? 36 kilometer downstream and return to the same spot. वापस ऊपर आने के लिए total time is taking how many hours? 8 hours. Speed of the boat in still water में, शांत पानी में speed of the boat क्या दिया हुआ है? 12 kilometer per hour. हमको ये पूछा गया है find the speed of water current. And for board examination it is there for 4 marks. 4 marks के लिए तो आता ही है सब. So what we'll do here, let the speed of water current, जो पानी का करंट है उसका स्पीड हम लोग क्या पकड़ते हैं? x किलोमीटर पर आवर पकड़ते हैं। We'll be taking as that. क्या दिया हुआ हम लोग को? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है। So write here the speed of boat in still water is how much? Is 12 kilometer per hour. Correct है? So it is being given to us. ये हम लोग को दिया हुआ। Now he takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream नीचे and return to the same spot. He is taking how many hours? He is taking in total 8 hours. So what I will write here? नीचे जाने के लिए speed of the boat क्या रहेगा? Therefore speed of boat while going downstream is equal to, it will be there along with the water current downstream के लिए, so it will be what? 12 plus x किलोमीटर पर आवर, बराबर है, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। वैसे ही अभी स्पीड ऑफ बोट while coming upstream is equal to what? अपस्ट्रीम आने के लिए क्या करेंगे अभी? It will be 12 किलोमीटर माइनस x किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? While going downstream वो क्या होगा? स्पीड ऑफ द बोट क्या रहेगा? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर के 12 किलोमीटर है, लेकिन वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो करंट का फ्लो के साथ जाता है, सो इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। जब वो अपस्ट्रीम आते हैं सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द वाटर करंट। व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट द वाटर करंट? द बोट। देयरफॉर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट विल बी व्हाट? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? स्पीड ऑफ द बोट व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम विल बी व्हाट? 12 plus x kilometer per hour, and while coming upstream it will be what? 12 minus x kilometer per hour. Now if you see carefully, we know that time is equal to what? Time is equal to distance upon speed. Time is equal to distance upon speed. And it was there in which standard? It was there in 9th standard. So now how much total kilometer it is taking? Pratik takes how much kilometer? 36 kilometer downstream. So time taken by the boat to travel how much kilometer? 36 kilometer. Time taken by the boat to travel 36 kilometer downstream is equal to what? Time is equal to what? Distance upon speed.
So 36 is the distance upon speed is how much? Speed of the boat while going downstream. So speed of the boat while going downstream is what? 12 plus x. Correct? Again here, time taken by the boat to travel 36 kilometer upstream will be what? Again, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने बोट ने? 36 किलोमीटर अपॉन अपस्ट्रीम का क्या आया था? स्पीड ऑफ द बोट हमारा 12 माइनस एक्स. करेक्ट? Got the concept clear? It is the time taken. But what is the time taken being given to us? He took 8 hours to travel downstream as well as to return to the same spot. So, according to given condition, what is the given condition? Just now I had told you, he takes Pratik takes 8 hours to complete what it is downstream and to complete upstream also. So it will be 36 upon 12 plus x and plus 36 upon 12 minus x is equal to total hours are how much? 8 hours. And this is also hours. Now what I will do here? Here 36 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं? 36 को मैं कॉमन करके मैं बाहर लेता हूं. Therefore 36 ब्रैकेट व्हाट इट विल बी? 36 बाहर गया तो बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 12 प्लस एक्स. 1 अपॉन 12 प्लस एक्स. बाद में का साइन क्या है? प्लस. बाद में 1 अपॉन 12 minus x bracket close is equal to how many hours it was? 8. It was 8 hours is equal to 8 it is. Got the concept clear? So 36 was common here. तो मैंने 36 को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 plus 12 upon x plus 1 upon 12 minus x is equal to 8 here. Now what I will do here? ये जो 36 नंबर है मैं ये इक्वल टू के बाद वाले नंबर के साथ मैं उसको लेके जाता हूं. तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 36. ये 36 मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. नाउ अगेन व्हाट इट विल बी हियर? हियर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई वन विल बी देयर. ये 12 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 12 प्लस एक्स ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैं नीचे डिनोमिनेटर क्या करूंगा? आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो इट विल बी व्हाट? देयरफॉर 1 into 12 माइनस एक्स क्या होगा? 12 माइनस एक्स प्लस 1 into 12 प्लस एक्स क्या होता है? सेम नंबर 12 प्लस एक्स अपॉन ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 8 और 36 किसके टेबल में जाते हैं? 4 के टेबल में. तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा? अभी ओपन अप द ब्रैकेट्स. सो व्हेन आई एम ओपनिंग अप द ब्रैकेट्स, यहाँ पे बीच में का साइन क्या? प्लस साइन है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. इट विल बी एज इट इज. सो आई राइट हियर 12 माइनस एक्स प्लस 12 एंड प्लस एक्स अपॉन अभी नीचे का देखो आप आइडेंटिटीज. व्हाट इज दैट? 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स है. इट इज सेम एज व्हाट? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट आइडेंटिटी आई विल पुट इट हियर. सो इट विल बी व्हाट? 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 upon 9. Correct? If you want, I will write down the identities also. A plus B
मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। नाउ व्हाट इज कटिंग हियर, अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड, सो 12 प्लस 12 कितना होता है, 12 प्लस 12 इज 24, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 24 अपॉन 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा, दिस 144 माइनस एक्स स्क्वायर विल गो हियर, 2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा और ये 9 24 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, एंड व्हाट आई विल डू हियर, आई विल पुट दिस 2 आल्सो हियर, so it will be therefore 24 multiplied by 9 और ये 2 है इज इक्वल टू के बाद 2 नंबर ऊपर है, मेरे को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने का है, तो ये ऊपर का 2 क्या होगा, सीधा 24 के नीचे आ जाएगा, मीन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेंगे मेरे पास 144 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ व्हाट इज गेटिंग कैंसल हियर, 2 1 जा 2 12 जा, what it is 24, therefore 12 into 9 is what, 108, 108 is equal to 144 minus x square, अभी प्लस 144 यहाँ पे आएगा तो क्या होएगा माइनस 144, therefore 108 minus 144 is equal to minus x square, now here 108 minus 144 is how much, it will be minus 32 is equal to minus x square, sorry it is not 32, 36, minus 36 is equal to minus x square, 108 minus 144 is minus 36, therefore x square is equal to what, 36, therefore x का वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस 6, therefore x is equal to 6 और x is equal to minus 6, correct। So we got both the values of, देखो x is equal to 36 था, तो x का वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस 36, therefore x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 6। Can we take the speed of boat as minus 6? No, it cannot be negative. So what I will do here, I will just rub this one. Right here, we cannot take x is equal to minus 6, hence the speed of boat is what? Speed of water current is 6 kilometer per hour. It was like this way. So in board examination, it is there for 4 marks. In question number 8, I have told you, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर, पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का हम लोग अलग अलग पार्ट बनाते हैं। जहां पे फर्स्ट टाइम खत्म होता है, यह हमारा हो गया पहला पार्ट, तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट पार्ट पे ही। सो पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। पिंटू क्या करता है, 6 दिन ज्यादा टाइम लगाता है निशु से कुछ वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट निशु टेक्स x days, कितना डेज पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, निशु कितना दिन लगाती है, x days टू कंप्लीट वर्क, बराबर है। निशु अगर x दिन लगाती है तो पिंटू कितना दिन लेता है, therefore पिंटू टेक्स, कितना दिन है वो, पिंटू टेक्स 6 days more than that of Nishu, यानी पिंटू कितना दिन लगाएगा, x plus 6 days लगाएगा वो,
टू कंप्लीट वर्क और टू कंप्लीट टास्क यू कैन से, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट क्वेश्चन का. What we have written, Nishu takes how many days? 6 days to complete the work, as well as Pintu takes how many days? 6.x days to complete the work. यह हो गया दिन. तो फिर एक दिन का काम निशु का कितना होगा? Therefore, 1 day work of Nishu will be how much? अगर वो x डे लगाती है कुछ काम कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में कितना आएगा उसका? 1/x. करेक्ट. वैसे ही एंड 1 डे वर्क ऑफ Pintu will be how much? Pintu will be 1/x plus 6. करेक्ट. समझ में आया था? क्या लिए थे हम लोग ने? निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क. वैसे ही Pintu टेक्स how many days? x plus 6 days to complete the work. 1 day work of निशु का क्या आएगा हमारा? 1/x. एंड 1 day वर्क ऑफ Pintu का क्या आएगा हमारा? 1/x plus 6. अगर दोनों जन अगर साथ में काम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? Therefore, 1 day work of both Nishu and Pintu is equal to 1 day work of Nishu का क्या था हमारा? 1/x plus 1 day work of Pintu का क्या था हमारा? 1/x plus 6. तो ये हमारा क्या हो गया? एक दिन का काम हो गया. किसका ये? एक दिन का काम हो गया हमारा निशु और पिंटू का. इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 6 करके. लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है? अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज? दे कंप्लीट इट इन 4 days. So that we will write it down. Given that if they work together, they finish the work in how many days? 4 days. करेक्ट. तो 4 दिन में उन लोग क्या करते हैं? ये वर्क उन लोग कंप्लीट कर देते हैं. तो एक दिन में वो कितना कंप्लीट करेंगे? इन 1 day वर्क फिनिश विल बी और वर्क डन विल बी हाउ मच? 1/4. बराबर है ना? क्या दिया हुआ? देखो अभी हम लोग का फर्स्ट टाइम हो गया था कंप्लीट. बाद में सेकेंड लाइन क्या था? इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश इट इन 4 days. तो गिवन दैट इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज? इन 4 days. अगर दोनों जन काम करते एक साथ तो फिर एक दिन में उन लोग कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? 1/4. यस और नो? सो लाइक दिस वे, व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition. ये क्या हो गया हमारा? एक दिन का काम हो गया. निशु और पिंटू का क्या था हमारे पास? 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 6 था. इज इक्वल टू यहाँ पे भी गिवन दैट क्या था हमारा? इफ दे वर्क टुगेदर, उन लोग कितने दिन में फिनिश करते हैं? 4 दिन में. तो एक दिन में उन लोग दोनों मिला के कितना वर्क फिनिश करेंगे? 1/4. तो ये सब कितना दिन का हो गया? एक दिन का ही हो गया. करेक्ट है ना? 1/x plus 1/x plus 6 is equal to what? 1/4. Now what we'll do a cross multiplication.
x प्लस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर भी नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So it will be what 1 into x plus 6 is x plus 6 plus 1 into x क्या होगा x और डिनोमिनेटर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो गए. करेक्ट. इज इक्वल टू व्हाट इट इज 1/4. Now we will open up the bracket x plus 6 plus x upon x अभी क्या होगा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई होगा. x into x इज व्हाट x स्क्वायर प्लस x into 6 क्या होता है 6x इज इक्वल टू 1/4. अभी ऊपर x plus x कितना होगा 2x. Therefore 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1/4. यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और x square plus 6x 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है. I write here 4 multiplied by 2x plus 6 is equal to 1 into any number will be the same number. So I write here what? तो क्या लिखूंगा यहाँ पे x square plus 6x. करेक्ट. अभी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या 4 मल्टीप्लाई बाय ना 2x plus 6 तो क्या होगा 4 है 2x को भी मल्टीप्लाई होगा और 4 6 को भी मल्टीप्लाई होगा. तो 4 into 2 is what 8x plus 6 4 जा 24 is equal to x square plus 6x. करेक्ट. अभी मैं क्या करूंगा 8x plus 24 है ना इक्वल टू का राइट हैंड साइड में डाल देता हूं तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं. राइट हैंड 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8x यहाँ पे आएगा तो क्या होता है माइनस 8x होएगा प्लस 24. देयरफॉर ये सब नंबर्स को मैं भी लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो फिर सबका साइन चेंज नहीं होता है. एक्स स्क्वायर अभी प्लस 6x माइनस 8x क्या होगा प्लस 6 माइनस 8 इज व्हाट -2 माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. अभी मैं क्या करने वाला हूँ 24 को मैं टेबल लिखूंगा यहाँ पे जिसका आंसर प्लस और माइनस में बीच में मेरे को क्या आना चाहिए इसका 2 नंबर आना चाहिए. सो 24 का स्प्लिट अप बता 24 किसके टेबल में आते हैं 6 4 जा 24 और 6 माइनस 4 करेगा तो क्या आता है मेरा आंसर 2. लेकिन 2 का साइन क्या है यहाँ पे बीच में माइनस है तो मैं क्या करूंगा बड़ा नंबर 6 है ना तो 6 का मैं साइन लिखूंगा माइनस और 4 का मैं साइन डालूंगा प्लस तो -6 प्लस 4 इज व्हाट -2. तो ये मेरा हो गया ये रफ फॉर्म. सो आई राइट इट डाउन हियर एक्स स्क्वायर देयरफॉर एक्स स्क्वायर अभी -2x कैसे आया था -6 प्लस 4 डाल के तो मैं लिखूंगा -6x प्लस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू व्हाट 0. करेक्ट. अब ये दोनों आप देखेंगे साइन क्या है दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 6x है दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है और यहाँ पे भी 4x प्लस 24 का ग्रुप बनाता हूँ. ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में आते हैं. सो आई राइट हियर व्हाट x ब्रैकेट x माइनस 6 और ये दोनों में कॉमन क्या है प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. बट इफ यू सी हियर carefully what is that 1 second I made some mistake here. ये -8x when it comes here प्लस 8x यहाँ पे आएगा तो -8x होता है और प्लस 24 यहाँ पे आएगा तो होगा -24. देन आई विल ऑल्सो राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24. हियर ऑल्सो द साइन विल बी -24 एंड हियर इट विल बी सेम प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ हियर व्हाट इज कमिंग दो बार क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस 6 दो बार आ रहा है तो मैं क्या करूंगा उसको मैं एक बार लिखूंगा x माइनस 6 क्या बचता है मेरे पास x प्लस 4 इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू
-6 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा +6 और x इज इक्वल टू +4 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -4. We cannot take the verb as negative, so we write it down. We cannot take x is equal to -4. So we cannot take x is equal to -4. Therefore, we write the final answer. Nishu takes how many days to complete x days to complete the verb? X is how much? 6. So Nishu takes 6 days to complete the work, and Pintu takes how many days? कितना दिन लेते हैं Pintu? x plus 6 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Pintu takes x plus 6 का मतलब x का वैल्यू कितना था 6. 6 plus 6 is equal to 12 days to complete the work. So this is how we have completed the sum. I will just explain in short how it went. देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 8 में कि पिंटू लेते 6 दिन मोर देन दैट ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क. उसको हम लोग ने एक ब्रैकेट में डाल दिए, यानी पहले सेंटेंस को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो निशु को हम लोग ने क्या पकड़ा x डेज टू कंप्लीट द वर्क निशु को. पिंटू कितना दिन लेते हैं 6 दिन ज्यादा निशु से. सो पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete the work here. यानी हमारा हो गया फर्स्ट टाइम क्लिक हो गया कंप्लीट. बाद में लोग ने देखा है एक काम कंप्लीट करने के लिए निशु लेते हैं x डे, तो एक दिन में कितना काम करता है ये निशु. तो 1 day वर्क डन बाय निशु विल बी व्हाट 1/x. वैसे ही पिंटू कितना दिन लेते हैं एक काम कंप्लीट करने के लिए x plus 6 days लेता है ना वो. तो एक दिन वो कितना काम कंप्लीट करेगा 1/x plus 6. ये हो गया उसका एक दिन का काम पिंटू का. ये हो गया निशु का एक दिन का काम 1/x. बाद में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम देखते हैं इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों जो साथ में काम करेंगे तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट करता है. तो इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days. पूरा काम 4 दिन में कंप्लीट करेंगे. तो एक दिन में दोनों जन मिलके कितना कंप्लीट करेंगे वो 1/4. करेक्ट. और ऊपर भी एक दिन में अगर दोनों का काम हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x प्लस 1/x plus 6 यहाँ पे आएगा. तो ये दोनों कंडीशन हमारा मैच हो जाता है. एक दिन का दोनों मिलकर काम इज इक्वल टू 1/4. तो 1/x plus 1/x plus 6 इज इक्वल टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग ने x plus 6 plus x. ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए. x into x plus 6 is equal to 1/4. x plus 6 plus x upon x into x क्या होता है x square plus x into 6 क्या होगा 6x is equal to 1/4. बाद में x plus x कितना होगा 2x. 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1/4. बाद में हमने यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 2x plus 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया is equal to 1 x square plus 6x के साथ मल्टीप्लाई हो गया. इट विल बी द सेम. व्हेन वी रिमूव द ब्रैकेट क्या हो जाता है 4 into 2 8x plus 4 into 6 is 24 is equal to x square plus 6x. बाद में हमने क्या किए 8x plus 24 को इक्वल टू का राइट हैंड साइड में लिया. तो प्लस 8x इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -8x होता है. और प्लस 24 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -24. यहाँ पे 0 है, इसके लिए सभी नंबर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होएगा. कभी अगर इक्वल टू के बाद 0 रहेगा तभी. सो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x प्लस माइनस क्या होता है माइनस. तो हो गया -2x -24 इज इक्वल टू 0. बाद में 24 को हम लोगों ने टेबल देखा 6 4 24. बीच में क्या साइन था यहाँ पे 2 के साथ माइनस साइन था. तो हम लोग ने क्या किए -6 plus 4 is equal to -2. We are written here as what x square minus 6x plus 4x minus 24 is equal to 0. ये दोनों में कॉमन क्या निकाला हमने x निकाला. What is there in the bracket x minus 6. ये दोनों में कॉमन क्या है +4 कॉमन है.
4 दोनों के टेबल में आता है. What is remaining? X minus 6 is equal to 0. बाद में हम लोग ने देखा कि x minus 6 दो बार रिपीट हो रहा है, हम लोग ने एक बार ले लिए. What is remaining? X plus 4 is equal to 0. तो x का वैल्यू मेरे पास आया 6 और x का वैल्यू क्या है मेरे पास -4. हम लोग x का वैल्यू -4 ले सकते हैं. So we'll be taking what? X is equal to 6. We have to write out the final answer. Nisha took x days means how many days? Nisha took 6 days to complete the work. And Pintu takes how many? X plus 6 means what? 6 plus 6 is equal to 12 days to complete the work.